Hi friends. So today in this video we are going to learn about the DMA, the direct memory access. So what is direct memory address and why we need direct memory address memory access and why it is needed and how it improves the system performance. All these things are we are going to learn in this video. So first of all, what is DMA? Direct memory access. So it is a method that allows the IO device to send or receive data directly to or from the memory without intervention or with of CPU or bypassing the CPU. Simply here what happens कि कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो किसी भी मेमोरी डिवाइस से या दो फास्ट मेमोरी डिवाइस अगर डेटा रिसीव और सेंड करना चाह रहे हैं आपस में डेटा को शेयर करना चाह रहे हैं तो उस सर्टेन टाइम पे सीपीयू इन्वॉल्व होता है और सीपीयू इन्वॉल्व होता है तो डीएमए कहता है कि विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू हम डेटा ट्रांसफर कराने के लिए रेडी है सो व्हाई इट हैपेंस एंड व्हाई वी बाईपास द सीपीयू इसके पीछे कारण क्या है सो जस्ट टेक अ लुक विद दिस example of this figure. Here what happens, all the buses, as we know we have three types of buses, the address bus, the data bus and the control bus. मैं सारे buses को यहाँ पे एक बस के तौर पे लिख रहा हूँ. So all the bus control of buses are with CPU. CPU के ही पास सारे बस का कंट्रोल होता है. So if the external device 1, this is the external device 1 and this is the external device 2, the memory is also a type of input output device as we know. तो यहाँ पे क्या है कि अगर दो एक्सटर्नल डिवाइस आपस में डेटा सेंड और रिसीव करना चाह रहे हैं, सो दिस डिवाइस वांट्स सम डेटा टू ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर एक्सटर्नल डिवाइस टू. सो व्हाट हैपेंस, इज देयर प्रोसेसिंग इज नीडेड? क्या यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग की जरूरत है? इज देयर सम प्रोसेसिंग हैपेंस? इट इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. बट the thing is what? The data transfer is with the help of this bus. So this external device transfer data with the help of this particular bus. But the control of this bus is with CPU. Now again, if this is in IO device want to transfer data to main memory or wants some data from main memory to itself, so what happens? In this time this bus is needed and again the control of bus is with CPU. So each and every time any of these want to only transfer data, send or receive data, they all request to CPU to grant the bus. किसी को भी केवल डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत होगी तो वो बस के लिए ग्रांट डिमांड करेगा सीपीयू से. व्हाई? बिकॉज द कंट्रोल ऑफ दिस बस इज विद द सीपीयू. नाउ व्हाट हैपेंस, देयर इज नो प्रोसेसिंग हियर, देयर इज नथिंग, ओनली ट्रांसफर ऑफ डेटा. बट ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ द बस इज विद द सीपीयू एंड इफ सीपीयू ग्रांट द परमिशन टू ट्रांसफर डेटा, then what happens? CPU is set idle. Why set idle? Because the control of the buses are with CPU. So CPU here monitors the bus when data transfer is going on. So at this time the CPU gets idle. जब डेटा ट्रांसफर होगा तो चूंकि कंट्रोल बसेस का सीपीयू के पास है तो सीपीयू इस डेटा ट्रांसफर को मॉनिटर करेगा. क्यों? क्योंकि बस का कंट्रोल इसके पास है. दैट्स व्हाई उस टाइम पे सीपीयू क्या होगा? सेट आइडल, वो खाली बैठ जाएगा और उस दरमियान वो काफी प्रोसेसिंग कर सकता था. एज वी नो द टाइम ऑफ सीपीयू इज वेरी मच कॉस्टली इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. सो बट व्हाट हैपेंस, ड्यू टू अ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन एक्सटर्नल डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस, सीपीयू सेट आइडल and this degrade the performance of our system. ये हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा, सिस्टम के थ्रूपुट पे असर पड़ेगा, सिस्टम का थ्रूपुट कम होगा. So this is not a good idea.
when there is some data transfer between memory and input output devices, CPU gets set idle. So to solve this demerit, or to solve this these things, what happened during the data transmission between these, a new concept evolved, and that concept is called DMA. There are some certain more concepts are also there, that is IO interrupts and IO controls methods, but here we are talking about the DMA. So in DMA there is a DMA controller. So what happens here? There is something another which is known as DMA controller. DMA controller is nothing but it is also an IC like CPU, but it have a limited capability, and the task of DMA controller is to control the data bus, address bus, or control bus, or all the buses during data transmission between these devices, that is the memory devices and the IO devices. And during that time, because the DMA control the buses on behalf of CPU, the DMA controller control the buses on behalf of CPU. It is very much important, on behalf of CPU. That means now CPU not need to involve during the data transmission, क्योंकि DMA controller अब जो बस के द्वारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो बस का कंट्रोल सीपीयू क्या करता है, डीएमए कंट्रोलर को ट्रांसफर कर देता है, और सीपीयू अब फ्री है इस डेटा ट्रांसफर को मॉनिटर करने के लिए, और वो कौन काम कर रहा है, डीएमए कंट्रोलर, बिकॉज डीएमए इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। और जब सीपीयू इन्वॉल्व नहीं हो रहा है लेकिन बस का कंट्रोल फिर भी ऑन बिहाफ ऑफ सीपीयू डीएमए कंट्रोलर के पास है, देन सीपीयू क्या कर सकता है, उस टाइम पे अपना दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकता है, यानी प्रोसेस कर सकता है। इसकी वजह से हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस में डबल इंक्रीमेंट हुआ। पहला इंक्रीमेंट की हमारा डेटा ट्रांसमिशन भी हो रहा है, साथ साथ सीपीयू अपना क्या कर रहा है, ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है। सो it is the basically why we need DMA controller. Now we are going to learn about how this particular operation is performed. Then see what happens when a request from any input output device or any memory device for data transfer, this request goes to the DMA controller, and DMA controller send a request to the CPU with the help of this bus request signal. So basically this diagram specifies all the CPU bus signal for data transfer. So here we have bus request and the bus grant signal, which is basically for DMA controller, and all these four which are address bus, data bus and control bus. What happens in control bus, this is read and write operation which is performed on the memory or input output devices. Again, so in the first step, when DMA control receive a request from the input output devices or memory for data transmission, CPU it requests to CPU for granting the bus to itself, to DMA controller. Then it sends a signal with the help of bus request signal. When the CPU receives the signal from the bus request signal, CPU takes all the operation, or CPU handles the all buses to DMA controller by sending the buses in high impedance mode. High impedance mode is a mode which is not 0 or not it is 1. That means CPU ने अपना buses का control अपने से छोड़ दिया है और उसे हाई इम्पीडेंस स्टेट में डाल दिया है। आफ्टर दैट व्हेन सीपीयू सारे बसेस को हाई इम्पीडेंस स्टेट में डालता है, देन इट सेंड्स अ सिग्नल टू बस ग्रांट सिग्नल टू डीएमए कंट्रोलर आईसी, एंड व्हेन डीएमए कंट्रोलर आईसी receives the bus grant signal, that means now the control of buses with DMA controller IC. Now on behalf of CPU, DMA controller IC or DMA controller monitors the data transfer, because now all the bus control of buses with DMA controller IC. So basically this is the working of DMA controller IC or DMA. Again,
When the data transmission is complete, DMA controller IC again transfer the control to CPU. It not वो अपने पास कंट्रोल नहीं रखेगा, जैसे ही डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट होगा वो वापस कंट्रोल क्या करेगा, सीपीयू को ट्रांसफर करेगा। और अगेन कोई एक रिक्वेस्ट आता है डेटा ट्रांसमिशन का, तो फिर से बस से रिक्वेस्ट सिग्नल भेजा जाएगा और सीपीयू क्या करेगा, सारे बसेस को हाई इंपोर्टेंस स्टेट पे डाल के बस ग्रांट सिग्नल देगा। यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन सीपीयू क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, दैट मींस सीपीयू डज इट्स प्रोसेसिंग, whereas all the data transmission is also happen at simultaneously। इससे हमारा क्या हुआ, हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव ही नहीं हुआ, जस्ट डबल हो गया, क्योंकि सीपीयू नाउ, पहले क्या होता था, सीपीयू क्या हो रहा है, जब भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो सीपीयू गेट्स आइडल, बट नाउ इन दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग डीएमए, सीपीयू अपना प्रोसेसिंग कर रहा है और डीएमए के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इनहांस किया। यहाँ पे आप देखो तो डीएमए कंट्रोलर जो है वो बेसिकली एक मैनेजर की तरह काम कर रहा है, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, बस का कंट्रोल ट्रांसफर करता है डीएमए को, डीएमए मॉनिटर करता है, जैसे काम खत्म हुआ फिर वापस बस का कंट्रोल सीपीयू के पास। सो हियर डीएमए बिहेव्स लाइक अ मैनेजर फॉर सीपीयू। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान भी हैं। फायदे क्या है, फायदा ये है कि हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, सीपीयू खाली नहीं बैठ रहा है और डेटा ट्रांसमिशन भी हो जा रहा है हमारा। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हमारे सिस्टम का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हमने फिर एक स्पेशल आईसी और स्पेशल एक सर्किटरी तैयार करना होगा और उसके लिए प्रोग्राम्स, मल्टी प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्राम को भी लिखने पड़ेंगे। तो वहां पे अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से ये उसकी कॉस्टिंग इंप्रूव बढ़ती है, बट दैट इज नॉट डिसएडवांटेज। उसके लिए हमारे पास एडवांटेज ज्यादा है कि हम अपने सीपीयू और हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इंप्रूव कर पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। थैंक यू।